Acha ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. So I thought I should be telling you people this thing, that what was the mistake which happened in the previous question, and because of that we were not getting the same answer. Because after multiplying with 2, multiplying and dividing with 2, we got it this way: e raised to the power x into sine 2x dx, right? And I missed in fact this 1 over 2 overall, right, in rest of the solution. Matlab ye, when I called this as second function and this as first function, sorry, this is first function, then I was supposed to write here 1 over 2, right? And it was like first function into integral of second function minus integration sign integral of second into derivative of फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, तो ये 1/2 वुड बी मल्टीप्लाइड ऑल ओवर. तो इसी की वजह से व्हेन वी गॉट हियर, वी वर गेटिंग हियर 4i, सॉरी, ओके, when we were getting here 4i, तो जब ये 1/2 multiply होगा, definitely this 2 and this I would be, this 4 would be cancelled out and it would become, sorry, we were getting here not 4i, we were getting here in fact 8i later on, if you remember. तो 1/2 और 8i जब ये multiply होंगे, this would be cancelled out and we will be getting 4i, and that 4i would go to the other side, would to become 5i, और वो फिर divide कर देंगे. ठीक है, I hope you people are understood now. This 1/2 was missed, so that's why we didn't get the same answer. Okay, so now let me start with the next part. Okay, so now let us talk about question number 2. I have written here 2 parts. बहुत आसान से questions हैं, they are not difficult at all. Again, अच्छा, ये थोड़ा सा अक्लमंदी यूज़ करनी है. Higher powers are used of trigonometric functions, right? So tan raised to the power 4x. Tan raised to the power 4x का मतलब है, can I split it as tan square x into tan square x? And practice would be telling you people this thing, ठीक है? I is equal to this thing. Okay. Now what? This is tan square x. Now what? I'm gonna do one thing. Tan square x को, एक tan square x को I'm gonna write it as secant square x minus 1 into tan square x as it is, दूसरे वाला. ठीक है? Now open the bracket. मतलब this tan square x will be multiplied with both of them. So we will be getting here secant square x tan square x dx minus integral tan square x dx. क्लियर? इस tan square x को मैंने मल्टीप्लाई किया. What about this? Let me write it over here. See, we had I is equal to, okay, now we had this thing made, which I made, secant square x into tan square x after opening the bracket into dx minus integral sign tan square x into dx. Okay, now what? Look at this. This is secant square x, right? बल्कि इसको ऐसे करेंगे, पहले tan square x को लिखना चाहिए, tan square x can I write tan square x as this into secant square x dx minus, I'll be letting you know why did I do that. secant tan square x को क्या हम split कर सकते हैं secant square x minus 1 में, right? Okay, now what? tan of x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x. So अब इसके साथ इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सो इसकी पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा. दिस वुड बिकम tan क्यूब ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 माइनस, व्हाट अबाउट दिस, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, इंटेग्रल ऑफ secant square x dx minus minus plus integral of 1 dx. Now what is integral of secant square x dx? We all know it is tan of x. And what is integral of 1 dx? We all know it is x. So what is my answer now? मैं अपना आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के सामने. इट वुड बी tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 माइनस secant, सॉरी, इट वुड बिकम tan, यहाँ इसका इंटेग्रल क्या होता है? tan ऑफ x प्लस 1 का इंटेग्रल क्या होता है? x प्लस c. दिस वुड बी योर आंसर. ठीक है, नाउ व्हाई आई रोट दिस पार्ट 2 विद इट, बिकॉज इसमें इसी का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो था फर्दर बन जाएगा, लाइक secant square x into secant square x dx. One of the secant square x can be written as 1 plus tan square x into secant square x dx as it is. Open the bracket, so it would become secant square x dx. कैसे ओपन की मैंने? इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ना इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस दिस वुड बिकम tan square x into
सीकेंड स्क्वायर एक्स। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया कि चूंकि इसका डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड भी हो जाएगा, उसी से ये डिवाइड भी हो जाएगा। एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स, वी ऑल नो इट इज tan x, सो प्लस सी, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, सो आसान सा क्वेश्चन था, दीज वर रिलेटेड, दैट्स व्हाई आई रोट देम ऑल, बोथ ऑफ देम एज टुगेदर। ओके, ये दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दीज टू, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं जूम इन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट and this is the second part. ठीक है, okay, now let us move further. very very important part, same as 15th part जिसने भी हमें इतना खपाया। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। क्या है इसमें भी, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, फर्स्टली आई एम गोना कॉल इट एज आई, बल्कि हम बाद में भी कह सकते हैं, अभी भी कह सकते हैं, अच्छा कह भी दें तो डजेंट मैटर, लेकिन इसको हम बाद में कहेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद। चलें, डजेंट मैटर, चलें। अच्छा जी, व्हाट एम आई गोना डू, दिस आर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसा ही है, तो इसको एक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, और सॉरी ये 2 से डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई भी किया। व्हाई एम आई डूइंग दिस, यू नो, टू मेक माई फार्मूला ऑफ चैप्टर 10, जब आपको कहते थे ना वो बड़े अच्छे से लर्न करें। सी, टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, क्या फार्मूला था इसका, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ alpha minus beta. Here what is my alpha and what is my beta? This is my alpha and this is my beta. So I'm going to apply the formula. It would become, it would become sine of, I should be changing the color, alpha plus beta, yani 2x plus x minus sine of alpha minus beta, yani 2x माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास खैर से दो क्वेश्चंस एक तरह से बन जाएंगे। इट वुड बिकम ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू व्हाट इज साइन ऑफ दिस, इट इज़ साइन 3x, राइट, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगानी चाहिए, माइनस व्हाट इज़ इट, साइन 2x माइनस एक्स, व्हाट इज़ इट, साइन x dx। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बाय द वे, ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू साइन 3x, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसको हम I1 कह देंगे। एंड ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स दूसरा फंक्शन बन जाएगा, I2 कह देंगे इसको, यानी वी विल बी गेटिंग इट एज 1/2, ये था ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन 3x माइनस साइन x dx, right? So what are we gonna do, we will be multiplying this e raised to the power x with both of them. So e raised to the power x into sine 3x minus 1/2 integral e raised to the power x into sine x dx, यहाँ पे भी dx। अब क्या बना हमारे पास, क्या बना हमारे पास, we will be calling this one as I1 and this whole one as I2, और ये पूरा था I। तो I का आंसर कैसे आएगा, इस पूरे का आंसर फाइंड आउट करने के बाद, और इस पूरे का आंसर फाइंड आउट करने के बाद उनको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, एंड दैट वुड बी, मतलब उनके बीच में माइनस आएगा, एंड दैट वुड बी माय आंसर, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इफ़ यू आर टेकिंग दिस होल थिंग एज I2, ये माइनस साइन आप इसके साथ नहीं ले रहे तो फिर इसको ऐसे ही रहने दें, नहीं तो आप उनको फिर एड अप कर लीजिएगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द आंसर, यू हैव टू पुट देम ओवर हियर इन दिस इक्वेशन एंड दैट वुड बी योर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है जी, अच्छा बिल्कुल उसी तरह दिस वुड बी योर सेकेंड फंक्शन, दिस वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन, दिस वुड बी योर सेकेंड फंक्शन, दिस वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन। अगर आप वाइस वर्सा भी करते हैं, उसको फर्स्ट उसको सेकेंड भी ले लेते हैं, तभी सोल्यूशन आपका आ जाएगा। बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी लेंथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल से कर लीजिएगा। लेट मी शो यू द सोल्यूशन ओवर हियर। ओके, yes, what did I write there, it was I is equal to 1/2 integral of sine 3x, because it was sine alpha plus beta plus sine alpha minus beta, yes, प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होना था, तो इट वुड बी प्लस ई रेज़ टू द पावर x इंटू साइन ऑफ x dx। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ई रेज़ टू द पावर x इंटू साइन 3x प्लस 1/2 इंटेग्रल ई रेज़ टू द पावर x इंटू साइन ऑफ x dx। दिस वुड बी योर I1 एंड दिस होल वुड बी योर आई एम सो सॉरी टुडे I2 एंड दिस इज़ माई I1। सो इन दोनों के आंसर्स फाइंड करने के बाद हम इसमें पुट करके प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है।
इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी हाफ है बाय द वे। ये आपका यहाँ से लिया I1, ये I1 को इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कहने के बाद सिंप्लीफिकेशन कर ली, ठीक है। नाउ दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ I1 फॉर नाउ। आई एम गोना शो यू द सोल्यूशन ऑफ I2 नाउ। सी, so I'll be sending you people the solution of I2 as separately. Let us get started with the next question, fourth part, ठीक है जी। अच्छा, look at this now, how am I gonna do this, ठीक है। see, tan square x को can I write it as, sorry, tan cube of x को can I write it as tan square x, sorry, into tan x secant x dx. Now what? Can I write this tan square x as secant square x minus 1 into secant x tan x? ये secant x tan x कहाँ से आया? ये वाला, यहाँ से secant था पहले ही और इसमें से एक tan हमने इसके साथ रख लिया, ये dx, right? Now open the bracket, secant square x into secant x tan x minus integral sign secant x tan x. अब secant x tan x क्या होता है? secant x tan x basically it is the derivative of this thing, sorry, derivative of secant x. अगर ये derivative of secant x इसके साथ मौजूद है तो हम इसकी पावर में क्या कर लेंगे, secant square x की पावर में एक ऐड कर लेंगे, उसी से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। so the answer of this would be secant cube of x divided by 3 minus what is integral of secant x tan x? It is secant x, so secant x plus c, this is your whole answer, ठीक है। फॉर्मूले आने चाहिए आपको। नेक्स्ट पार्ट, इन दोनों का सोल्यूशन आपको इकट्ठा मिल जाएगा आगे, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी थोड़ा लेंथी पार्ट है, एनीवेज अगेन। अच्छा जी, आई लेट, देखिए दिस इज़ माई एक्सपोनेंशियल, ये सबसे एंड पे, तो डेफिनेटली दिस वुड बी योर सेकंड फंक्शन, है ना। सो दिस इज़ माई सेकंड फंक्शन एंड डेफिनेटली दिस वुड बी माई फर्स्ट फंक्शन। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस। व्हाट एम आई गोना डू, माई आई वुड बी, ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन into integration of second minus integral sign integration of second into derivative of first, right? जल्दी से, अच्छा जी, x cube as it is into what is integral of e raised to the power 5x? we all know e raised to the power 2x का integral होता है e raised to the power 2x divided by 2, so here it would be e raised to the power 5x divided by 5 minus integral sign, again इसका integral क्या होगा, e raised to the power 5x divided by 5 minus, sorry minus क्यों, into what is the derivative of x cube? it is we all know 3x square, further derivative 1 होता है, वो मैं नहीं लिख रही, clear? okay, x cube into e raised to the power 5x divided by 5 minus 3 divided by 5 would come outside into e raised to the power 5x into x square dx. Again what are we gonna do, we will be calling this as second function, this as first function, लेकिन आप देख रहे हैं कि x की पावर रिड्यूस होती जा रही है और एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये आई बने, ये ख़त्म हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोना राइट डाउन दिस एंड लाइक आई जस्ट बी राइटिंग डाउन दिस, और ये मैं आगे क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो ये ऐसे करके -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, ओके नाउ व्हाट, फर्स्ट फंक्शन, बल्कि इसको हम आगे ले जाते हैं अगले पे, मैं बाकी नहीं लिखूंगी, -3 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मैंने सिर्फ गाइड करके ही छोड़ना है, इतनी जगह नहीं है कि पूरा क्वेश्चन किया जाए, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटेग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब ये वैसे का वैसा -3 बाई 5 इंटू x square as it is into what about this, what about this, it would be e raised to the power 5x divided by 5 minus what about this, क्या बनेगा, e raised to the power 5x divided by 5 into what is the derivative of this, it is 2x, ठीक है। अब अगेन सिंप्लीफिकेशन करें, मतलब 3/5 आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बिकम 3 डिवाइडेड बाई 25 e रेस टू द पावर 5x x स्क्वायर, और इसी -3/5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट वुड बिकम माइनस माइनस प्लस 6x, तो अंदर रहेगा 6 डिवाइडेड बाई 25 इंटीग्रल ऑफ
ई रेस टू द पावर 5x इंटू एक्स डी एक्स। अब अगेन ठीक है, मैं सिर्फ गाइड करके छोड़ने लगी हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, दिस वुड अगेन बी योर सेकंड फंक्शन, दिस एक्स वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन। तो आप इसको फर्दर फिर ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट मी शो यू द सोल्यूशन ऑफ दीज टू। सी वी डिस्कस दिस वन इन डिटेल। फोर्थ वन छोटा था इसलिए हमने इसको पूरा एंड तक किया। स्क्रीनशॉट ले लें। एंड देन दिस इज़ योर फिफ्थ वन। यू कैन सी दिस इज़ अ लेंथी क्वेश्चन, राइट। सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ तक तो वी हैव डन इवन, है ना, यहाँ तक हमने कर भी लिया था। ठीक है, इसको अच्छे से ख्याल से करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा गाइड करके वही बातें छोड़ दूँगी। ओके, मेन क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो आपकी मर्ज़ी, वही बात, लेकिन हम इसको सेकंड लेंगे और इसको फर्स्ट लेंगे। ठीक है, और वही बात क्योंकि रिपीट होगा फंक्शन, हम वी आर गोना कॉल इट एज आई। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट। सो नाउ हाउ वुड वी अप्लाई इट? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिस इज cos 3x। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आई बी लीविंग इट, आप खुद करेंगे। ओके, ई रेस टू द पार्ट 2x dx, व्हाट इज इट? इसका इंटेग्रल क्या होता है? ई रेस टू द पार्ट 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटेग्रल साइन, अगेन इसका इंटेग्रल क्या होता है? ई रेस टू द पार्ट 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस cos 3x, व्हाट इज इट? -3 sin 3x। क्लियर? अब ये वैल्यूज़ -3 और डिवाइडेड बाय 2 ये बाहर आ जाएंगी। ठीक है, सो इट वुड बिकम ई रेस टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 3x माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन व्हाट? इंटेग्रल ई रेस टू द पावर 2x सॉरी sin 3x। अब हम क्या करेंगे? अगेन दिस वुड बी सेकेंड, दिस वुड बी योर फर्स्ट। फिर से अप्लाई करेंगे और आप देखोगे कि आपके पास ये फंक्शन दोबारा बन जाएगा एंड वी विल बी कॉलिंग दैट एज आई, और उसको इधर ले जाके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एज आर 15th क्वेश्चन। लेट मी शो यू द सोल्यूशन ओवर हियर। ये देखें, यहाँ पे दोबारा वही फंक्शन बन जाएगा ये। कैन यू सी? एंड एज आई टोल्ड यू पीपल, इफ़ यू रिमेंबर दैट दिस वुड ऑलवेज बी नेगेटिव। सी -4/9 आई। सो -4/9 आई का मतलब है ये, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा एंड दिस वुड बिकम 13 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ये मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पे आके आप इसको डिवाइड करवा लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन इज़ इजी, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। एंड आई विल बी मीटिंग यू पीपल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।